Hello economics learners, welcome back to Economics Notes channel. First of all, I really want to thank you all for viewing our previous videos. Thank you so much. And if you are liking the content, please like our videos, and please do subscribe our channel so that I could share my knowledge with you all in the form of notes more and more. So please do support our channel Economics Notes. Keep supporting. Thank you so much everyone. Also click on the bell icon so that you never miss on any notification. Whenever I would upload a new video, you will get the new notification of it. And thank you so much. Please do subscribe the channel Economics Notes. So as I told you earlier that we are going to start the UGC NET paper 1 series. So here we are going to start now the UGC NET paper 1 series. Paper 1 has total 10 units. So this will be the first video for UGC NET paper 1. Keep supporting so that I could share my knowledge in the form of notes more and more. And please do subscribe the channel Economics Notes. Please like the videos and share it with your friends so that more and more students could get benefit and could learn more and more from these notes. Thank you so much. So let us start our first video of UGC NET paper 1 series. Okay, so UGC is University Grants Commission. NET जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. NET, National Eligibility Test. I know you all know it. So the first paper 1, which is paper 1, जो पहला पेपर है जिसे हम पेपर 1 कहते हैं नेट में, उसमें टोटल 10 यूनिट्स है. It is about general paper on teaching and research aptitude. टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर जो जनरल पेपर होता है वो आपका पेपर 1 होता है, जिसमें आपके पास टोटल 10 यूनिट्स होती हैं. These are Unit 1, which is teaching aptitude. Unit 2 is research aptitude. Unit 3 is comprehension. Unit 4 is communication. Unit 5 is mathematical reasoning and aptitude. Unit 6, logical reasoning. Unit 7, data interpretation. Unit 8, information and communication technology. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ICT. Unit 9, people development and environment. And Unit 10, which is the last unit of paper 1, is higher education system. Now we are going to start our first teaching aptitude, which is the first unit of paper 1, teaching aptitude. So let us start the first unit of paper 1, teaching aptitude. सबसे पहले टीचिंग और एप्टीट्यूड, ये दो वर्ड्स मिलके बना टीचिंग एप्टीट्यूड. इसका मीनिंग क्या होता है? टीचिंग मतलब पढ़ाना, एंड एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी क्या है. राइट, टीचिंग की एबिलिटी या टीचिंग की क्षमता, यानी पढ़ाने की क्षमता इज टीचिंग एप्टीट्यूड. ओके, लेट अस स्टार्ट. टीचिंग इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन कॉन्सेप्ट. टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरैक्शन होता है किस चीज के ऊपर? एक गिवन कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर. उसको समझने के लिए जो इंटरैक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसे हम टीचिंग कहते हैं. बेसिकली जो टीचर पढ़ाता है किसी एक कॉन्सेप्ट को, अपने स्टूडेंट को समझाता है, उसे हम कहते हैं टीचिंग.
right? The motive behind teaching is to develop cognitive skills and bring changes in the behavior of students, which is called learning. इसका मोटिव क्या होता है, टीचिंग का मोटिव क्या होता है? That to develop cognitive skills, आपके सोचने की क्षमता को या उसके स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम टीचिंग का मोटिव होता है कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने के लिए, सोचने की, समझने की शक्ति को, क्षमता को बढ़ाने के लिए. एंड ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स के बिहेवियर में भी चेंजेस लाना, जिसे हम कहेंगे लर्निंग. ये सब पॉसिबल हो पाता है लर्निंग की वजह से. लर्निंग का मीनिंग होता है सीखना, राइट? आप कुछ भी सीखते हो, स्टूडेंट्स कुछ भी सीखते हैं, दैट इज his or her learning, right? So the motive is to develop cognitive skills and bring changes in the behavior of students. जो कि किसकी वजह से होगा? लर्निंग की वजह से. वो जैसे जैसे सीखेगा तो उसकी cognitive skills डेवलप होंगी और उसके बिहेवियर में अच्छे चेंजेस आएंगे. लर्निंग इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस विच नेवर एंड्स. लर्निंग एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता है. As I think you have read it somewhere. I have also mentioned it many times that there is a quote of Peter Drucker. He said that learning is a lifelong process. It was his saying that learning is a lifelong process. Learning आपकी कभी खत्म नहीं होती है. आप जब तक जीते हो, आप तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो. So he said that learning is a lifelong process, right? So thus we can say that teaching and learning both are two sides of the same coin. Teaching and learning are the two sides of the same coin. Teaching is a planned, coordinated act of sharing knowledge and experience. Teaching क्या है? Teaching एक planned और coordinated तरीके से knowledge को, experiences को share करना है. जो एक टीचर पढ़ाता है किसी को, तो वो अपने knowledge को और अपने experiences को share करता है एक planned तरीके से. हर चीज को प्लान करके, कोऑर्डिनेट करके, फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है, जिसे हम टीचिंग कह सकते हैं और कहते हैं, राइट? नाउ बेसिकली द प्राइम रोल ऑफ अ टीचर इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू स्टूडेंट्स. सो बेसिकली जो टीचर का प्राइम रोल होता है वो क्या होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर सके, यानी उनको दे सके, उनको प्रोवाइड करा सके, अंडरस्टैंडिंग दे सके उस टॉपिक के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उन्हें वो अच्छे से समझा सके और उनको स्किल्स प्रोवाइड कर सके, राइट? सो दिस इज द रोल ऑफ अ प्राइम रोल ऑफ अ टीचर. द वर्ड एप्टीट्यूड मीन्स टू डेवलप एन एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग. एप्टीट्यूड जैसे मैंने कहा आपको, हिंदी में हम कह सकते हैं इसे क्षमता, राइट? क्षमता, किसी भी काम को करने की क्षमता. सो एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप एक अपनी एबिलिटी डेवलप कर रहे हो, किसी भी काम को करने की एबिलिटी को डेवलप कर रहे हो, क्षमता ला रहे हो या कोई स्किल ला रहे हो अपने अंदर कि जिससे आप उसको कर सको, जो भी आप काम करना चाह रहे हो, राइट? सो यहाँ पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पढ़ाने की क्षमता. Thus, teaching aptitude can be defined as the development of required ability and skill sets which are essential to be a good teacher. So, teaching aptitude can be defined as development of required ability. जो ability आपके लिए आपके अंदर होनी चाहिए, जो skill sets आपके अंदर होने चाहिए, जो आपके अच्छे टीचर होने को दर्शाएगा, उसे हम teaching aptitude कहेंगे. Okay? So this was all about teaching aptitude. तो जो हमारा पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो है क्या, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा और समझा, राइट? अब हम पढ़ेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन. ओके, फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन. सो idealism.
सबसे पहला है हमारी एजुकेशन की फिलॉसफी, सबसे पहली है आइडियलिज्म। द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। सो आइडियलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जो सबसे पहली फिलॉसफी है एजुकेशन की, वो क्या कहती है? वो ये कहती है, बेसिकली आइडियल का मीनिंग होता है आदर्श, राइट? आइडियल हम कहते हैं ना कि ये मेरा आदर्श है, ये मेरा आइडियल है, राइट? उसे आइडल कहते हैं, आई नो, बट आइडियलिज्म इज कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज में कितना विश्वास रखते हैं, उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या सो आइडियलिज्म इज कि आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को कितना बढ़ाते हो, कितना आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, उसी से आपकी असली ग्रोथ होगी। या आप उसके अंदर कितना विश्वास रखते हो, कितनी आप उसकी समझ रखते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज आप कितनी रखते हो, उसी से ही आपकी ग्रोथ होगी। उसी नॉलेज को इन्होंने आइडियल माना है, राइट? आइडियलिज्म जो माना गया है पहली फिलॉसफी, वो उसी पे बेस्ड है कि आप अपनी नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म कितनी ज़्यादा अपने अंदर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, कितना लाइफ में अपनी आपको आप स्पिरिचुअल रखते हो, गॉड की तरफ बढ़ते हो, वो ही जो पर ब्रह्म परमात्मा है, आप उनकी तरफ बढ़ते हो, आप उनको ही अपना सब कुछ मानते हो। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की, उस बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, उस चीज को, उस नॉलेज को यहाँ पे आइडियल माना गया है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। ओके, सो यहाँ पे देखें तो फ्रॉबिल, कांत, प्लाटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद एंड श्री औरबिंदु आर प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म। ये सब सपोर्टर्स हैं इस आइडियलिज्म फिलॉसफी के, इस फिलॉसफी के ये सब सपोर्टर्स है। प्रोपोनेंट्स इज सपोर्टर्स, ओके, जो जिन्होंने इस फिलॉसफी का साथ दिया, जो इनके समर्थक रहे। द सेकेंड फिलॉसफी इज नेचुरलिज्म। नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी। नेचर ही सारी सच्चाई है, यानी पूरी की पूरी रियलिटी जो है वो सिर्फ नेचर रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि जो नेचर, जिसे हम प्रकृति बोलते हैं हिंदी में, तो प्रकृति के बारे में अगर आपने जाना, आपने समझा, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको समझेंगे, जानेंगे, तो आप धीरे धीरे उसी के अंदर चले जाएंगे, राइट? तो वो जो एक रियलिटी है, वो जो एक ट्रुथ है, नेचर, वो ही अपने आप में सब कुछ है। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, नेचुरलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, जो प्रकृति के बारे में जाना, समझना, यही सब आपका ट्रुथ है, यही आपका सच है, यही आपकी रियलिटी है। तो जो नेचर को समझेगा, वो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग वो ही सब रियलिटी है, वही सच्चाई है। जो आपको आसपास दिखता है, जो सामने आपको दिखता है, वही तो नेचर है ना। तो जो दिखता है वही सिर्फ रियलिटी है, नेचुरलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये कहना है। ओके, द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ नेचुरलिज्म्स आर टैगोर, रोसू एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, तो नेचुरलिज्म के मेन प्रोटैगनिस्ट थे, जो इनके सपोर्टर्स थे, जो ये मानते थे कि सिर्फ नेचर ही रियलिटी है, जो आपको सामने दिख रहा है सिर्फ वही सच्चाई है और कुछ सच्चाई नहीं है। तो इनके हिसाब से इस नेचुरलिज्म फिलॉसफी के कौन कौन से सपोर्टर्स थे? टैगोर, रोसू एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, now the third philosophy of education is pragmatism. जो तीसरी फिलॉसफी है वो क्या है? pragmatism. Whatever is useful is good and whatever is good is useful. So according to this philosophy of education, which is pragmatism, इनका ये कहना है pragmatism में कि जो भी useful है वो भी अच्छा है और जो अच्छा है वो भी useful है। बेसिकली जैसे जो चीज आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर रही है, आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर रही है, उस चीज, जो भी ऐसी चीज है वो आपके लिए अच्छी है, और जो अच्छी होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके लिए यूजफुल होंगी, तभी तो अच्छी है ना? तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग ये कहना है कि जो भी चीज आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला रही है, कुछ अच्छा कर रही है, वो अच्छी है, और जो अच्छी चीजें हैं वो तो आपके लिए वैसे भी यूजफुल है,
क्योंकि वो चीजें ही अच्छी हैं आपके लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट द थर्ड फिलॉसफी टॉक्स अबाउट, व्हाट that whatever is useful and whatever is useful is good and whatever is good is useful. So who are the supporters of this third philosophy, pragmatism? The thinkers John Dewey, Kilpatrick, Mead are some of the main exponents of this philosophy. तो ये सब supporters थे, ये सब thinkers थे जो pragmatism को support कर रहे थे, right? Now teaching. Now we'll talk about what is teaching. Teaching क्या है? Teaching का nature क्या है, objectives क्या है, उसकी characteristics क्या है and basic requirements क्या है. Okay? So teaching is triadic in nature. Teaching is triadic in nature, that is, it involves three core elements, which are, first one is teacher, second one is student and third is subject matter. So teaching जो है वो आपकी triadic है nature में, right? Triadic means त्रिगुणात्मक. त्रिगुणात्मक मतलब जिसके तीन elements हैं, तीन elements, which is the first one is teacher, the second one is student and the third one is the subject matter. Subject matter. So the teacher, student and subject matter, which is a concept, एक concept जिसके बारे में बात हो रही है या जो पढ़ाया जा रहा है, उसे हम teaching में include करते हैं. ये तीनों teaching में include होते हैं. ये तीन elements हैं teaching के, right? Let us see what is all about teaching. Teaching and learning are two processes which are interrelated. टीचिंग और लर्निंग जो है वो दो ऐसे प्रोसेस है जो दोनों इंटररिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बिना मतलब अलग अलग काम नहीं चल सकता. दोनों होंगे तभी वो प्रोसेस पूरा हो पाएगा टीचिंग का, राइट? सो दोनों प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग, दोनों ऐसे प्रोसेस है जो इंटर रिलेटेड है आपस में, जिनका जो दोनों रिलेट करते हैं, राइट? वन ऑफ द सोल एम्स ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग आउट सम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स विद द एनहांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज बेस. सो सबसे पहला जो एम है टीचिंग का वो क्या है कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए स्टूडेंट्स के अंदर, एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए स्टूडेंट्स के अंदर विद द एनहांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज बेस. यानी क्या करके स्टूडेंट्स की नॉलेज का जो बेस है, बेस नॉलेज बेस जो है उसे आप इनहैंस करो, उसे आप अच्छे सकारात्मक तरीके से परिवर्तित करो या बढ़ाओ. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट एम ऑफ टीचिंग, राइट? सोल एम ऑफ टीचिंग, पहला और मेन एम यही है. All teaching should focus on enhancing the learning outcomes of students. The second one talks about कि teaching को किस पे फोकस करना चाहिए? स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स पे, कि बच्चा सीख क्या रहा है, राइट? उसको आपको कैसे इनहैंस करना है, उसके लर्निंग आउटकम्स को आपको कैसे इम्प्रूव करना है. However, if the process of teaching is not good, then it will be a teaching process with no productive learning outcome. तो अगर प्रोसेस ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं होगा तो टीचिंग प्रोसेस बिना किसी प्रोडक्टिव लर्निंग आउटकम के होगा, जो कि ठीक नहीं है, राइट? तो इसीलिए टीचिंग को जो फोकस होना चाहिए टीचिंग का वो ये होना चाहिए कि कैसे एक स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम इम्प्रूव किया जाए, इनहैंस किया जाए. द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग. जो लर्निंग का प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग है, एज देयर इज नो एंड टू एनरिचिंग द नॉलेज लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल. चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी, किसी की भी, जैसे मैंने अभी पहले बोला था, पीटर ड्रकर सेड इट दैट लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी आप जब तक जियोगे तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे. दैट इज फॉर श्योर, राइट? सो आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आपकी नॉलेज में हमेशा
इन्हांसमेंट या इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, उसमें नए नए ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहेंगे. अनदर वाइटल पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट अ टीचर ऑल्दो टीचर्स बट लर्न्स ऑल्सो. एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, दैट अ टीचर ऑल्दो टीचर्स, टीचर पढ़ाता है बट सीखता भी है. पढ़ाने के साथ साथ वो कई चीजें सीखता है. तो आप जैसे अब आप सब इसके लिए पढ़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, राइट? तो आप सबको भी टीचिंग एप्टीट्यूड की नॉलेज होना जरूरी है. आप आगे रिसर्च करेंगे तो इसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है. आपको भी ये अपने अंदर रखना है कि आप भले ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप रिसर्च करेंगे, बट ऑलवेज बी रेडी टू लर्न. ओके, सो नेवर फॉरगेट कि एक टीचर भले ही टीच कर रहा हो, पढ़ाता हो, लेकिन वो सीखना कभी बंद नहीं कर सकता, राइट? सो आप सबको भी टीचिंग एप्टीट्यूड की नॉलेज होनी चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जितने भी बच्चे, आप सभी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आप सबको आगे ये टीचिंग एप्टीट्यूड ही बहुत हेल्प करेगा पढ़ाने में, राइट? सो अ टीचर वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग. तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस दौरान वो इस प्रोसेस में होता है, सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस में होता है, राइट? तो जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो खुद भी साथ साथ सीख रहा है, तो वो उस टाइम पे सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस में होता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड. आई hope you have understood the concept of teaching aptitude, what is the teaching aptitude, and as I told you earlier that teaching aptitude आप जितना समझेंगे उतना वो आपको आगे हेल्प करेगा, उतना वो आपको आगे हेल्प करेगा. कैसे? आपको अगर मॉडल्स ऑफ टीचिंग पता होंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग पता होंगे, या क्या टीचिंग में रिक्वायर्ड होता है, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीज़ें जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी. और आगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और जेआरएफ क्लियर करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा पढ़ाने में, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट the concept teaching aptitude. Next videos में हम in the next video we will study models of teaching and methods of teaching. Okay, so till then, please, if you like the video, please like the video and please do subscribe the channel Economics Notes, and please share it with your friends more and more so that more and more students could benefit from these notes. And I really hope you've understood the concept. Thank you so much everyone. We'll meet in the next video. Thank you so much.